رخصت میں لیتا ہوں. سرکار لے جاؤ اسے حوالات میں. لیکن حضور چھوڑ دیجیے. آپ کا ملزم آپ کے سامنے موجود ہے. میں عیسیٰ ہوں. اوہ، تو تم کسی عیسیٰ کو نہیں جانتے. کہاں تو معاف کرنا بھائی، ہم نے تم سے ایک بات پوچھنی ہے. ارے ایک کا تو ہی پوچھو. مل ہیر پھیر کی بات نہیں کرنا. ہم کا بہت دور جائی کا ہے. ہمارے پاس لمبی کتھا سننے کا وقت نہیں نا. بھائی یہ لکھنؤ یہاں سے کتنی دور ہے؟ لکھنؤ جات ہو؟ ارے مارے جئی ہو. وہاں آج کل بہت ہاہاکار مچی ہے. روز لڑائی ہوت ہے. اب ہم کچھ روز پہلے بہت جورن کی لڑائی بھئی رہی. سنی تھی کہ وہاں گورن کا کونو بڑا مارا گوا ہے. کچھ سنا آپ نے؟ یہ شخص کہتا ہے کہ ابھی لکھنؤ میں بڑے زوروں کی لڑائی ہوئی تھی، اور یہ بھی سنا ہے کہ اس نے گوروں میں کوئی بڑا آدمی مارا گیا. اب سمجھے ہو، کہوں دور سے آئے ہو کا؟ ہاں بھیا، ہم لوگ بہت دور سے آئے ہیں اور ابھی لکھنؤ جانا ہے. نہ بھیا نہ، ہمری مانو تو ترت یہیں سے گھوڑا پھیر لو. وہاں جائی کے چکر میں پڑ جائی ہو. مل جائے کی بات ہے. جے کا دیکھو منہ اٹھائے چلا جات ہے لکھنؤ. ای کا دیکھو او کا پوچھو، ہر سخت ہی کہا تھے کہ لکھنؤ جائی تھے. لکھنؤ میں شکر بٹا تھی کا. بھائی تم نے یہ نہیں بتایا کہ لکھنؤ یہاں سے کتنی دور ہے؟ دور؟ ارے ای کا دھرا ہے سامنے. گھوڑے کا ایک ایڑ دیو تو لے پہنچ گئے لکھنؤ. زیادہ میں زیادہ 7-8 کوس ہوئی. بھائی بہت بہت شکریہ. معاف کرنا بھیا، کھچڑی میں چنا بھی ہے اور ساگ روٹی بھی. جی چاہے تو کچھ کھائے پی لو. بھائی تمہاری بڑی مہربانی، اللہ تمہیں بہت دے. سلام. وعلیکم. یہ تو کوئی زخمی ہے. ہاں بے ہوش معلوم ہوتا ہے. پتہ نہیں بیچارہ کون ہے. کیسے اتاریں؟ صورت شکل سے تو مسلمان لگتا ہے. آؤ اسے اتار. آنکھیں کھولو بھائی، آنکھیں کھولو. ارے یہ تو بالکل بے ہوش ہے. میرے خیال میں اسے اپنے ساتھ لے چلیں. آپ ٹھیک کہتے ہیں. جلدی کریں جلدی کریں. ناصر بیٹا، بہت دن ہو گئے تمہارے گھر آئے ہوئے. اب مجھے میرے گھر چھوڑ کر آ جاؤ. خالہ جان. ناصر کیا بات ہے؟ بہت چپ چپ ہو. اقبال کی کچھ خبر ملی؟ جی ہاں، کیمپ سے اطلاع آئی تھی کہ وہ لکھنؤ چلا گیا. خدا کرے خیر سے وہ لکھنؤ پہنچ جائے. شہر کا کیا حال ہے؟ شہر اب کہاں خالہ جان.
یہ تو ایک قبرستان ہے. دلی بار بار اجڑی اور بسی، مگر اس بار ایسی اجڑی کہ دوبارہ نہیں بسے گی خالہ جان. ناصر، کچھ عجیب عجیب سے لگ رہے ہو. کیا بات ہے ناصر؟ مجھ سے کوئی بات چھپانا نہیں. خالہ جان، آپ بہت صابر ہیں. آپ نے ایوب کا صدمہ برداشت کر لیا، اقبال کی جدائی برداشت کی. رات میں نے خواب دیکھا. محمدی صاحب، نور محمد، شریف حسین، تم لوگوں پر بغاوت میں حصہ لینے، باغیوں کی مدد کرنے، فوج اور عوام میں اشتعال پھیلانے، قتل، غارت، لوٹ مار، دنگا فساد کرنے اور کرانے کے الزامات سنا تم نے. لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے، میں تم لوگوں پر کوئی مقدمہ نہیں بنانا چاہتا، اور اگر کوئی ہے بھی تو میں تم لوگوں کو اس سے بری کرانے کی پوری کوشش کروں گا. لیکن میری ایک شرط ہے، تمہیں بتانا پڑے گا کہ بغاوت کے دوران کون کون لوگ تمہارے ساتھ تھے اور انہوں نے کیا 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 اور کن لوگوں کی مدد سے کیا. نیز شہر میں اب بھی جو باغی موجود ہیں وہ کون کون لوگ ہیں اور کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اگر تم لوگوں نے یہ سب کچھ بتا دیا تو میں تمہیں سرکاری گواہ بنا کر چھوڑ دوں گا. ممکن ہے اس سے تم لوگوں کو کچھ فائدہ پہنچا. سوچو، پھر سے سوچو. اب آپ نے کیا سوچا ہے؟ اب سوچتے سمجھنے سے کیا حاصل ہے بیگم؟ جو ہونا تھا ہو چکا. میں نے بہت چاہا کہ اپنے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے کوئی عافیت کا راستہ تلاش کر لوں، لیکن انسان اپنی تقدیر سے تو نہیں بھاگ سکتا نا. آپ جنرل ولسن سے مل لیجیے ابا جان. جنرل ولسن سے مل لو؟ نہیں بیٹی، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں ان جنرلوں کی فطرت سے بہت اچھی طرح واقف ہوں. یہ ایک مرتبہ جس بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس سے تس سے مس نہیں ہوتے. خدا غارت کرے فرنگیوں کو ہماری وفاداری کا یہ صلہ دیا ہے. بیگم، تقدیر میں ایک پریشانی لکھی تھی جو پوری ہو گئی. جو نہ سوچا تھا وہ ہوا، جو نہ دیکھنا چاہا تھا اسے دیکھنا پڑا. پریشانی انسان سے برداشت ہو جاتی ہے ابا جان، پشیمانی برداشت نہیں ہوتی. کاش ہم لوگ پریشان ہوتے، پشیمان نہ ہوتے. ستور ٹھیک کہہ رہی ہے بیگم، لیکن بیٹی میں پریشان ہوں، پشیمان تو نہیں ہوں. بیٹی، میں نے جو کچھ بھی کیا اپنے دل اور ضمیر کے مطابق سوچ سمجھ کر کیا تھا. میرا انجام چاہے جو بھی کچھ ہو، لیکن میں دیکھ رہا ہوں، اور دوسرے دیکھنے والے سے آئندہ دیکھیں گے کہ تاریخ کا سفر اسی طرف ہے جس طرف میں نے سوچا تھا. فرنگی اس ملک میں ایک نئی روشنی لے کر آیا ہے. اب یہ روشنی تاریکی میں ملی جلی ہے، اب یہ اندھیروں نے سے ڈس رکھا ہے. لوگ ابھی سے دیکھ نہیں سکتے کیونکہ یہ ظلم و جبر کے پردوں میں لپٹی ہوئی ہے. لیکن ایک وقت آئے گا جب لوگ اسے دیکھیں گے، وہ لوگ بھی جنہیں آج کل تاریکی کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا. اور اس وقت شاید لوگوں کو اس بات کا احساس ہو سکے، شاید اس وقت لوگ اس بات کو سمجھ سکیں کہ ہر وہ فرد جس نے فرنگیوں کا ساتھ دیا قوم کا غدار نہیں تھا. کہتا ہے ہمارے خلاف مقدمہ بنانا نہیں چاہتا، اور ہمیں گرفتار کس لیے کیا ہے؟ اے بابا، یہ ہمیں سمجھتا کیا ہے؟ وہ جب میری طرف دیکھتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی عیال لومڑی مجھے سونگ رہی ہے. تم کیا سوچ رہے ہو شریف؟ سمجھ میں نہیں آتا. میں تو کچھ نہیں سوچ رہا. میری طرف دیکھو، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھو. مجھے بتاؤ تمہیں پارسل کی باتیں کیسی لگی؟ وہ سچ کہتا ہے یا جھوٹ؟
बोलो। कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता। वो झूठ कहता है, झूठ, समझे? उसकी किसी बात का इतबार नहीं, ना लालच का, ना धमकियों का। देखो यार शरीफ, हमें उसे कुछ बताना नहीं है। आप मेरी मदद कीजिए ईसा भाई, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मुझे आप कुछ बताइए, मुझे कुछ समझाइए। देखो शरीफ, चाहे वो कितना ही लालच दे, कितना ही धमकाए, कितना भी डराए, हमारा जवाब सिर्फ एक होगा। हमारा जवाब सिर्फ एक होगा शरीफ, हमें कुछ नहीं मालूम, हमें कुछ नहीं मालूम। बहुत कमजोर, बहुत घबराओ मत, खुदा पर नजर रखो, खुदा तुम्हें हिम्मत देगा। दुआ कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए। आलम पना, हुजूर ने कितने वक्तों से खासा नोश नहीं फरमाया। उजड़ गया, सब कुछ उजड़ गया, दिल और दिल्ली दोनों उजड़ गए। हुजूर सब्र फरमाइए। जमा वक्त। जी बाबा जानी। ये आवाज कहां से आ रही है? ये नौबत कहां बज रही है? हमें लाल किले ले चलो। लाल किला वीरान है आलम पना, उसके दरो दीवार उदास है। जवां वक्त, हम दिल्ली देखना चाहते हैं, ले चलो हमें उन गली कूचों में जहां फरंगी हमारे जानिसारों को चुन चुन कर शहीद कर रहे हैं, जहां अकबर और जहांगीर के नाम पर अब भी सर झुकते हैं। ले चलो हमें उन लोगों में जो आले तैमूर पर अब भी जान देते हैं। हम देखना चाहते हैं हमारी दिल्ली पर, शाहजहां और औरंगजेब की दिल्ली पर, उस दिल्ली पर जिसे चांद और सूरज भी सलाम करते थे, वो दिल्ली जो सीना गेती का दिल थी, उस पर क्या गुजरी है। तशरीफ रखिए हुजूर, हुजूर बहुत कमजोर हैं। तशरीफ रखिए। सब कहां गए? वक्त खां नहीं आए, हकीम एहसानुल्लाह खां कहां है? उनसे कहो बहादुर शाह तुम्हें याद करते हैं। भूल जाइए उन सबको, दिल्ली में अब कोई नहीं रहा। कोई नहीं रहा, कोई नहीं रहा। बहादुर शाह की दिल्ली में बहादुर शाह का कोई नहीं रहा। ओ खुदा सब फरमाइए हुजूर। हुजूर खासा हाजिर है, नोश फरमा लीजिए। खासा खासा नहीं नहीं जीनत, मुझ में अभी सरपोश को उठाने की हिम्मत नहीं रही। हुजूर के किसी जानिसार ने भेजा है और ये खत है हुजूर के नाम। खत है? जमा वक्त, के जानिसारों ने ऐद किया है कि वो शाही खानदान की तबाही के जिम्मेदार मेजर हडसन से इंतकाम लिए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे।
वाटसन, वाटसन। तुम कहते थे कि बागियों का खात्मा हो गया, तो फिर ये क्या हो रहा है? मुझ पर गोली चलाई गई है। ये गोली बागियों ने नहीं चलाई तो किसने चलाई है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। देखो पार्सन, तुम्हें जल्द से जल्द मालूम करना है कि ये कौन लोग हैं जिसमें इतनी हिम्मत है कि वो हडसन के घर में गोली चला सके। यस सर। दिल्ली के घर घर में इन्हें तलाश करो और जो है उसे गोली मार दो। यस। और सुनो, अगर तुम अपनी मुहिम में नाकाम रहे तो हडसन के गजब का सामना करने के लिए तैयार रहो। यस। अब तुम्हारा क्या हाल है? तुम जख्मी कैसे हुए? आप कौन लोग हैं? तुम्हारा नाम क्या है? तुम मुसलमान हो ना? हाँ, मुसलमान। और आप? हम भी मुसलमान हैं। खुदा का शुक्र है। अच्छा, तुम जख्मी किस तरह हुए? फरंगियों की गोली से। अब बैठे रहो नौजवान, बैठे रहो। कैसी है तबीयत? मेरी आंखें अगर गलती पर नहीं है तो मैं इस वक्त जनरल वक्त खां का चेहरा देख रहा हूँ। ये खादिम इरशाद है। हमें लखनऊ के बारे में कुछ बता सकते हो? लखनऊ का हाल भी दिल्ली दरबार से कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं। क्या मतलब? दरबारों में क्या होता है? साजिशें, रकाबतें, छोटी छोटी बातों पर इख्तलाफात और ग्रोहबंदी। ये दरबारों की बात नहीं है नौजवान। इक़्तिदार का खेल इन्हीं चीजों का नाम है। यहां भाई भाई के खिलाफ और बाप बेटे के खिलाफ दाव मारता है। दरबार सिर्फ इक़्तिदार का खेल खेलने की जगह है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हमें दरबार के खिलाफ नहीं, इक़्तिदार की हविस के खिलाफ बात करनी है। लेकिन इक़्तिदार की हविस दरबार वालों में सबसे ज्यादा होती है जनरल। इक़्तिदार की हविस खुसरो और कोहकन दोनों को रुस्वा करती है नौजवान। बहरहाल हमें लखनऊ के बारे में कुछ बताओ। शहजादा फिरोज, नाना साहब, अहमदुल्ला शाह, ये सब लोग लखनऊ पहुंच चुके हैं। क्या हमें उनके बारे में कुछ बता सकते हो? अफसोस, किसी का कोई एक मंसूबा नहीं। सबके ख्यालात मुख्तलिफ, सबके मंसूबे मुख्तलिफ, सब मुख्तलिफ गिरोह में बटे। तुम्हारा ताल्लुक किस गिरोह से है? मेरा ताल्लुक किसी भी गिरोह से नहीं। ये कैसे हो सकता है? तो फिर यूं समझो उस गिरोह से है जो इन तमाम गिरोहबंदियों का खात्मा कर देना चाहता है। लखनऊ में अंग्रेजों की क्या पोजीशन है? 28 सितंबर को हेलाक और आउटरम सालिम बाग पहुंच गए। वहां एक जबरदस्त मार्के में मुजाहिदीन ने उन्हें शिकस्त दी, जिसके बाद वो लोग रेजिडेंसी महसूस हो गए। एक अफवाह सुनने में आई थी कि जनरल नील मारा गया। हाँ, ये तिला दुरुस्त है। हेलाक और आउटरम कहाँ है? अभी तक रेजिडेंसी महसूस है। मुजाहिदीन को अच्छा खासा वक्त मिल गया, लेकिन अफसोस हम लोग कुछ करने में नाकाम रहे। वजह आपस के इख्तिलाफात। हमने सुना है कि तांत्या टोपी गंगा अबूर करके कानपुर पर हमले का मंसूबा बना रहा है। हमें मशवरा दो नौजवान, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें लखनऊ के बजाय तांत्या टोपी की तरफ बढ़ना चाहिए? मेरा ख्याल है कि लखनऊ में आपकी मौजूदगी अहमदुल्ला शाह जैसे मुजाहिदीन के लिए तक़वियत का बाइस होगी। और इसके अलावा दिल्ली के बाद लखनऊ जिहाद का मरकज है। तुम ठीक कहते हो। लखनऊ में बहुत कुछ हो सकता है। पार्सन बहुत परेशान है। न जाने ये काम किन लोगों का है। बहुत से नौजवान अभी मायूस नहीं हुए हैं। या यूं समझ लो कि जिस बाजी को पुरानी नस्ल खेल कर हार गई है, नई नस्ल उसे हर कीमत पर खेलना चाहती है। हो सकता है। नासिर अख्तर और उनके साथ ही अभी अपनी खुफिया सरगर्मियों में मसरूफ हैं। अच्छा। और इतनी एहतियात से काम कर रहे हैं कि किसी को उन पर शुबा भी नहीं हो सकता। मुझे यकीन है ये काम उन्हीं लोगों का है। खुदा करे वो कामयाब हो जाए, मेरी तो दुआ है भाई। मामंदी साहब, तुम्हारे कुछ लोग तुमसे मिलने आए।
लोग ईसा को समझाओ, वरना इसका बचना मुश्किल है। आप कैसे हैं? तुम अपना हाल सुनाओ। शुक्र है अल्लाह जिस हाल में भी रखे। मैंने अय्यूब की खबर सुन ली है। उन पर बड़ा कड़ा वक्त पड़ा है। बड़ी हिम्मत और सब्र की जरूरत है। अय्यूब शहीद हो गया, इकबाल फिर गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। खालू जान, अगर आप पार्सन की बात मान ले तो वो आपको छोड़ देगा। नासिर जी, तुम कैसे हो? धारे के खिलाफ तैरने वालों का हाल पूछा नहीं था खालू जान, देखा जाता है। मेरा हाल आपसे मुख्तलिफ नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप जंजीर की कैद में हैं, मैं वक्त की कैद में। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ नासिर। अपनी खाला को भी समझाने की कोशिश करो और सकीना को भी। खुदा ने हम पर जो वक्त डाला है वो हमेशा नहीं रहेगा। वक्त खत्म हो गया। अच्छा, अब तुम लोग जाओ। खुदा हाफिज। एक बात का वादा कीजिए, आप अपनी जान हलाकत में नहीं डालेंगे। मैं तुम्हें सिर्फ एक बात का यकीन दिलाता हूं, मैं खुदकुशी नहीं शहादत चाहता हूं। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम कैसे हो सकीना? नासिर कहाँ है? कहीं गए हैं, मगर आप कैसे आ गए? मुझे तो बहुत पहले आना चाहिए था, मगर मैं लंदन जाने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें ऐसी मसरूफ हुई कि तुम लोगों ने मेरा साथ दिया। तुम खैरियत से हो ना? नासिर बहुत परेशान है, खालू जान गिरफ्तार हो गए हैं। ओह, मुझे अफसोस है। ये सब कुछ क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। एक वक्त में मुसीबत में थी, उस वक्त कि तुम लोगों ने मेरा साथ दिया। अब तुम मुसीबत में हो और मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम के लिए क्या करूं। आप कुछ कर सकती हैं तो खालू जान के लिए कुछ कीजिए। पार्सन चाहे तो उन्हें छोड़ सकता है। ये लोग इतने पागल हो चुके हैं कि आप किसी पर कोई एतबार नहीं रहा। फिर भी कोशिश करूंगी। आप बैठ जाइए, भाईजान आते ही होंगे। नहीं, मेरा जरा जल्दी है। नासिर से कहना मुझसे मिलने। अच्छा, मैं उनसे कह दूंगी। सकीना, तुम पर, तुम्हारे खानदान पर, तुम्हारी कौम पर बड़ी आजमाइश का वक्त है। सब्र और हिम्मत से काम लो। शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। लेकिन एक बात का हमेशा यकीन रखना कि जब तक मैं जिंदा हूं तुम लोगों का एहसान नहीं भूलूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वाल मोहम्मद ईसा, अब बताओ क्या फैसला है तुम्हारा? मेरी समझ में नहीं आता मैं आपको क्या जवाब दूं। तुम इनकार से अपने लिए मुश्किलात बढ़ाते जा रहे हो। इनकार का सवाल ही नहीं है। जब मैं कुछ जानता नहीं तो मैं आपको क्या बताऊं? मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, वो कौन से लोग हैं जो अब भी बाग़ियाना सरगर्मियों में मसरूफ हैं? यकीनन तुम उन्हें जानते हो। जनरल वक्त खान उनके साथ ही जा चुके हैं। मौलवी फजल हक दिल्ली में नहीं है। सैकड़ों लोग गोलियों और भालों का शिकार हो चुके हैं। अब ये कौन लोग हैं मैं नहीं जानता। ताजुब है, तुम्हारे जैसे बागियों को दूसरे बागियों का हाल नहीं मालूम। देखो ईसा, मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन नहीं करूंगा।
तुम्हें बताना पड़ेगा ये कौन लोग हैं। आप यकीन करें या न करें, लेकिन हकीकत यही है कि मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा, तुम इस तरह नहीं मानोगे। तुम इस तरह नहीं मानोगे। ले जाओ सामने। चलो। शरीफ हुसैन, अब बताओ क्या मालूम है? मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। मैं तो कुछ भी नहीं जानता। अच्छा, देखा जाएगा, देखा जाएगा। रहम, अभी वक्त है। या अल्लाह रहम। जो भी तुम्हें मालूम है बता दो, बता दो। मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। एजाज है। नहीं नहीं, खुदा के लिए नहीं। मुझे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मैं मर जाऊंगा। मुझे कुछ खबर नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं। ईसा भाई, खुदा जाने शरीफ पर क्या गुजरी होगी। अल्लाह मालिक। वो बहुत कमजोर है, इतनी सख्तियत कैसे बर्दाश्त कर सकेगा। अल्लाह सब पर रहम करने वाला है। ईसा भाई, अगर उसने सब कुछ बता दिया तो क्या होगा? खुदा की मर्जी, उसके आगे किसी को क्या इख्तियार है। शरीफ, इरशाद इत्तला लेकर आता ही होगा। मैंने मौलवी अहमदुल्ला शाह और शहजादा फिरोज को आपकी आमद की खबर कर दी है। हमारी उनसे कब मुलाकात होगी? बहुत जल्द। वो लोग खुद आपसे मिलने के बेहद मुतमन्नी हैं। मौलाना फजल हक खैराबादी की कोई खबर है? सिर्फ इतना मालूम हुआ है कि वो खैराबाद पहुंच चुके हैं। इसके बाद कोई इत्तला नहीं मिली। वैसे एक अफवाह सुनने में आई है कि तांतिया टोपी कानपुर से निकलकर लखनऊ की तरफ पेशकदमी के मंसूबे बना रहा है। मालूम नहीं मम्मू खां को हमारे यहाँ पहुँचने की इत्तला मिली है या नहीं। जी हाँ, उन्हें भी इत्तला हो चुकी है और वो बहुत जल्द आपसे मुलाकात करने वाले हैं। हेवलाक और आश्रम की कोई खबर है? वो अभी तक रेजिडेंसी मैसूर हैं और कानपुर से मदद पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। खैर जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हम सब लोगों की मुलाकात जरूरी है। ईसा भाई का क्या फैसला हुआ? फैसला तो अल्लाह के हाथ है। वैसे उन्हें कल अदालत में पेश किया जाएगा। देखो अब क्या होता है। आप घबराएं नहीं फूफी जान, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। हाँ बेटी, अल्लाह की जात से उम्मीद तो यही है। आपके भाई कह रहे थे कि हवालात ईसा भाई से मिलने जाएंगे। हमने कहा पहले हम दुल्हन भाभी से मिलाएं, फिर आप भी हो आइएगा। मैंने सुना था कि नवाब भाई पर भी सख्ती की गई है। हाँ, सारी जायदाद जब्त हो गई है और ये भी बड़ी मेहरबानी की गई है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? नवाब भाई तो इकबाल की वजह से फिरंगियों ने हम पर ये इल्जाम लगाया कि हमने अपनी हवेली में एक बागी को पनाह दी थी। इकबाल की वजह से? अल्लाह, हमारी वजह से किस किस को आजमाइश में डाल दिया। अफसोस करने लगी फूफी जान, ये तो सब तकदीर की बातें हैं। सकीना बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? शायद उदास हो गई हैं, मैं बुला कर लाती हूँ। हाँ, पर सितवत आ गई।
तो दिल को ढारस बंधी कि कोई तो है हमें देखने वाला। हम तो कहते हैं अल्लाह ने आपको बहुत मजबूत दिल दिया है और बहुत सब्र दिया है, वरना कोई और होता तो खुदा जाने क्या करता। हम आपके लिए कुछ और तो नहीं कर सकते। ये रख लीजिए, शायद जरूरत पड़े। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ले लीजिए दुल्हन भाभी, हम कोई गैर थोड़ी हैं। नहीं नहीं, जरूरत होती तो रख लेती। वैसे भी नासिर हमारा बहुत ख्याल करता है। मैं आपका हाथ बढ़ाऊं? शुक्रिया। आप यहाँ क्यों आ गई? आप चलिए, मैं भी आती हूँ। एक बात कहूँ आपसे, मैंने सिर्फ आपका जिक्र सुना था, आपको देखा नहीं था, और अब आपको देखा है तो आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। क्यों शर्मिंदा करती हैं? सच कह रही हूँ, आप भी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। वैसे मेरा जिक्र आपने किससे सुना था? कभी कभी अम्मी आप लोगों का जिक्र करती हैं, लेकिन पिछले दिनों आप लोगों का जिक्र कुछ ज्यादा ही रहा। वो इकबाल साहब की वजह से, वो जख्मी होकर हमारे यहाँ आए थे ना। ओह हाँ, मैंने सुना था। उनकी वजह से वो अक्सर आप लोगों की बातें करते हैं। वो आपके यहाँ किस तरह पहुंचे थे? मालूम नहीं। मैं उस दिन किसी काम से पाए बाग की तरफ बरामदे में गई। वहां मैंने देखा एक जख्मी जमीन पर पड़ा तड़प रहा है। मेरे होश उड़ गए और मैं चीख पड़ी। फिर क्या हुआ? मैंने अम्मी को बुलाया और उनसे कहा। क्या वो बहुत ज्यादा जख्मी थे? हाँ, बेहोश हो गए थे। और कितनी देर में होश में आए? काफी देर बेहोश रहे। अब्बा जी तो थे नहीं, मैं और अम्मी उठाकर उन्हें अंदर ले गए। फिर होश में आए तो सबसे पहले पूछने लगे, आप लोग कौन हैं? बातें तो वो बहुत करते हैं, आपसे भी खूब बातें की होंगी। जी हाँ। आप क्या सोचने लगी? देर हो गई, आइए चलते हैं। आपको मालूम है वो कहाँ है? जी नहीं, मुझे मालूम नहीं। फूफी जान कह रही थी शायद लखनऊ पहुंच गए हैं। हाँ, सुना तो यही है। खुदा करे ऐसा ही हो। आइए चलिए। बाअदब निगाह रूबरू, ताजारे सल्तनते वक्त, शहरयारे मुल्को मिल्लत, नवाब सुल्तान बिरजीज कदर बहादुर रौनक अफरोज होते हैं। बाअदब बामुलायदा निगाह रूबरू, होशियार। बाअदब बामुलायदा निगाह रूबरू, होशियार। बाअदब बामुलायदा निगाह रूबरू, होशियार। बाअदब बामुलायदा होशियार। बाअदब बामुलायदा होशियार। मलिका आलिया, जनरल बख्त खां शरफ बारियाबी की इजाजत चाहते हैं। उन्हें इज्जत और एहतराम के साथ लाया जाए। खादिमे दीने इस्लाम, महबूब मुसलमानान हिंदुस्तान, जनरल बख्त खान तशरीफ लाते हैं। आइए बख्त खान, तशरीफ लाइए। हुजूर, गुलाम के पास नज्म के लिए सिवाय इस तलवार और इस सर के कुछ नहीं। ये दोनों चीजें जो एक सिपाही का आखिरी सरमाया है, मैं हुजूर की नजर करता हूँ। मरहबा। एक मुजाहिद से हम इसी नजर की तवक्को रखते थे। उठो बख्त खान। बेशक अवध को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत ऐसी तलवारों की है जिनका लोहा दुश्मन भी मानते हो, और ऐसे सरों की जो बातिल के आगे झुकना ना जानते हो। हम अपनी तरफ से मलका आलिया हजरत महल की तरफ से और अवध के जानिसारों की तरफ से आप जैसे मुजाहिद को खुशामदीद कहते हैं, और साथ ही ये भी यकीन दिलाते हैं कि खाक अवध का जर्रा जर्रा आप ही की तरह जहाद आज़ादी के जज्बे से सरशार है, और इस सिलसिले में आपका हर मसला हमारा मसला और आपका हर फैसला हमारा फैसला होगा। बस हुजूर, गुलाम को इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। हुजूर, गुलाम की जिंदगी एक अहद के साथ बंधी हुई है कि जिस वक्त तक बख्त खान के जिस्म में जान और जान में कुव्वत है,
वो इस सरजमीन पर मुसलमानों के इक़्तिदार को बहाल करने के लिए जिहाद करता रहेगा। यही अहद था जो मुझे दिल्ली ले गया, मगर अफसोस दिल्ली हमारे हाथ से निकल गई। हिंदुस्तान एक सर्द और बेजान लाश की तरह है जिससे जिंदगी की हरारत रुखसत हो चुकी है। अलबत्ता कहीं कहीं चिंगारियां सुलग रही हैं, मगर किसी चिंगारी में इतना दम नहीं कि भड़क कर शोला बन जाए। इसी आलम में सिर्फ अवध है कि एक कमजोर और नहीफ शख्स की तरह जिंदगी के आसार का पता दे रहा है। हुजूर, मैं इसी उम्मीद पर अवध आया हूं कि यहां मुझे वो सब कुछ करने का मौका मिल जाएगा जो मैं दिल्ली में न कर सका। हुजूर, अगर मेरी ये तवक्को पूरी हुई तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि एक न एक दिन अवध तो क्या पूरा हिंदुस्तान हमारा होगा। इंशाअल्लाह खुदा आपकी हर उम्मीद को पूरा करेगा बख्त खां। मुजाहिद आजम बख्त खां को हमारी तरफ से खिलत पेश किया जाए। देखो, खूब अच्छी तरह समझ एक एक लफ्ज इसी तरह कहना है। ऐसे ही होगा सरकार। और हाँ, घबराना नहीं। अबे तूने भी समझ लिया है नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अबे कहीं वहां पहुंचकर गड़बड़ न कर देना। सरकार आप चिंता न करें। हाँ। 11 मई से 19 सितंबर तक 4 महीने बगावत में हिस्सा लिया, लूट मार की या लोगों को लूट मार पर उकसाया, जुल्म तशद्दुद किया या लोगों को जुल्म तशद्दुद करने की तरगीब दी। मैं तुम्हें 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाता हूँ। बारे इलाहा, जैसे तेरी मर्जी। मुल्ज़िम मोहम्मद ईसा वल्द मोहम्मद इब्राहिम और मुल्ज़िम नूर मोहम्मद वल्द गुलाम को पेश किया जाए। मुल्ज़िम नूर मोहम्मद और मुल्ज़िम मोहम्मद ईसा हाजिर हैं। मुल्ज़िम नूर मोहम्मद वल्द गुलाम मोहम्मद का मुकदमा मजीद तफ्तीश के लिए पंजाब मुंतकिल किया जाता है। मुल्ज़िम ईसा को पेश किया जाए। मुल्ज़िम ईसा हाजिर है। गवाहों को पेश किया जाए। गवाह कन्हैया लाल को पेश करो। नमस्ते सरकार। नमस्ते सरकार। तुम्हारा नाम? कन्हैया लाल। बाप का नाम? रामलाल। तुम मुल्ज़िम ईसा वल्द मोहम्मद इब्राहिम को जानते हो? हाँ जी जानता हूँ, खूब अच्छी तरह जानता हूँ। तुमने मुल्ज़िम मोहम्मद ईसा को 12 मई से 19 सितंबर तक किसी भी तारीख कहीं देखा? हाँ जी, कई बार देखा। क्या तुम किसी रोज का ऐसा वाक़ा बता सकते हो जो तुमने खुद अपनी आंखों से देखा हो? सरकार, एक दफा मैं बाजार से गुजर रहा था जहां इनकी दुकान है। मैंने देखा वहां बहुत से लोग जमा हैं और सरकार ये लोगों को भड़का रहे थे कि गोरों को मारकर भगा दो। और उन्होंने खुद भी बगावत में हिस्सा लिया? हाँ सरकार, बराबर हिस्सा लिया। सरकार, इनकी दुकान पर बड़े बड़े बागी जमा होते थे और सरकार वहां से लोगों को हथियार भी दिए जाते थे। तुमने खुद देखा? हाँ सरकार, देखा क्यों नहीं, बराबर देखा। और तुम कहना चाहते हो कुछ? नहीं सरकार, जो कुछ कहना था कह चुका। तुम जा सकते हो। नमस्ते सरकार। नमस्ते सरकार। दूसरा गवाह पेश किया जाए। नमस्ते सरकार। तुम्हारा नाम? मोहन सिंह। बाप का नाम? सुवन सिंह सरकार। तुम मुल्ज़िम ईसा वल्द मोहम्मद इब्राहिम को जानते हो? जी जानता हूँ सरकार। तुमने मुल्ज़िम ईसा को बगावत के दिनों में कहीं देखा? हाँ जी, शहर में एक दफा लूट मार हो रही थी सरकार। लोग गोरों को पकड़ पकड़ के ले जा रहे थे सरकार। इन सब में इन्हें भी देखा था सरकार। तुम कभी इनके दुकान पर गए? जी नहीं, दुकान पे तो नहीं गया सरकार। हाँ सुना है कि वहाँ बड़े बड़े बागी जमा होते हैं और शहर में जो इंतजाम होता है ना सरकार, उसकी तैयारी भी वहीं की जाती है। क्या तुम इनके दुकान पर आने वाले लोगों के नाम बता सकते हो? हाँ सरकार, वो फजले हक जो मौलाना थे ना, वो भी इनकी दुकान पे आते थे सरकार, और दिल्ली वाले कई इनकी दुकान पे जमा होते थे सरकार। तुम कुछ और करना चाहते हो? नहीं सरकार। तुम जा सकते हो। नमस्ते। कोई और गवाह? सरकार, सरकार मेरा नाम है काली मिर्जा। सारे शहर को पता है मैं कौन हूँ। किसी से पूछ लो, सब बता देंगे कि मिर्जा काले कौन है।
اور ملزم عیسیٰ بلکہ اس کے پورے خاندان کو جانتا ہوں. اس کا رتی رتی حال بتا سکتا ہوں. یہ اور اس کا بیٹا اقبال دونوں باغیوں کے سرگنا ہیں. کسی سے پوچھ لو, سب بتا دیں گے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. شہر میں آگ انہوں نے لگوائی, لوٹ مار میں دونوں نے حصہ لیا, اور سرکار انہی کے بھڑکانے پر لوگوں نے کئی گوروں کو قتل کیا. تم نے ان کے بیٹے اقبال کا نام لیا ہے, وہ کہاں ہے؟ ارے سرکار, وہ تو بڑا پکا باغی ہے. وہ تو بریلی والے جنرل کے ساتھ لڑنے میں بھی شریک تھا. جس وقت دلی پر انگریزوں کا قبضہ ہوا اسی روز زخمی ہو کر بھاگا تھا. چھپ چھپا کر کسی طرح نواب امیر الدین کے پاس پہنچ گیا. یہ نواب امیر الدین کون ہے؟ ارے وہی ہے سرکار جن کی جائیداد ضبط ہوئی اسی اقبال کو پناہ دینے کے الزام میں. اچھا, تو یہ دلی سے کہاں گیا؟ پتہ نہیں سرکار. اس کے بعد دوبارہ وہ بریلی والے جنرل کے پاس کیسے پہنچ گیا اور اس کے ساتھ دلی بھاگ گیا. اب سنا ہے کہ لکھنؤ کی طرف گیا ہے. اچھا, تو تم یہ کہہ رہے تھے کہ ملزم محمد عیسیٰ نے لوگوں کو انگریزوں کے قتل پر اکسایا؟ جی ہاں سرکار, اور کئی لوگ قتل بھی ہو گئے. پھر اس کے بعد انگریزوں کے خوف سے یہ پانی پت بھاگ گیا, اور اس کے پیچھے یہاں اس کا چھوٹا بیٹا بھی قتل ہو گیا, لیکن یہ واپس نہیں آیا. اور تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ارے سرکار, کہنے کو تو جو کہیں آپ وہ کہتا چلا جاؤں. میں سب کچھ جانتا ہوں, اور سرکار میں نے جو کچھ بھی کہا ہے بالکل ٹھیک ہے. آپ کسی سے پوچھ لیں. تم جا سکتے ہو. جی آدھا آدھا. ملزم عیسیٰ, تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے؟ صرف ایک بات, میں نے کسی بغاوت میں حصہ نہیں لیا. کوئی قوم جب اپنی آزادی کے لیے جد و جہد کرتی ہے تو اسے بغاوت نہیں جہاد کہتے ہیں. میں باغی نہیں ہوں, میں نے بغاوت نہیں کی ہے, صرف ایک غاصب حکومت کے خلاف جہاد کیا ہے. تم اکبر اور جہانگیر کے دربار میں ٹوپیاں اتارتے ہمارے ملک میں آئے اور تاج اتارنے لگے. تاجر تھے, تاجدار بننے کے خواب دیکھنے لگے. تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی حق نہیں پہنچتا کہ آزاد قوم کے افراد سے یہ بات پوچھ کر سکو کہ انہوں نے اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کیوں کی, کیوں ایک ایسی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے جس کی بنیاد صرف ڈاکے مارنے پر ہے. بے شک میں نے جہاد میں حصہ لیا ہے, فساد میں حصہ نہیں لیا. تم مجھے باغی ثابت کر سکتے ہو, فسادی ثابت نہیں کر سکتے. اور اس کا ادنا ثبوت یہ ہے کہ تمہیں ساری دلی میں میرے خلاف 2 ہندوؤں اور ایک مخبر کو چھوڑ کر کوئی اور گواہ نہیں مل سکا. پھر بھی تم مجھے سزا دے سکتے ہو, اس لیے کہ خوبی تقدیر سے میزان میرے بجائے تمہارے ہاتھ میں ہے. لیکن تم مجھے کیا سزا دو گے؟ زیادہ سے زیادہ موت. تو میں اپنے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اپنے ملک اور اپنے مذہب کی راہ میں مجھے ایک بار نہیں 1000 بار بھی ہلاک کیا جائے تو میری زبان سے شکر کے سوا کوئی اور لفظ نہیں نکلے گا. ملزم عیسیٰ, گواہان کے بیانات اور تمہارے اعتراف سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ تم پر جو الزامات لگائے گئے تھے وہ سب درست تھے. میں تمہیں سزائے موت سناتا ہوں. دیکھو باہر کوئی آیا ہے. آپ نے مجھے آواز دی خالجان؟ ہاں, باہر دروازے پہ کوئی دستک دے رہا ہے. ناصر آیا ہے شاید. ہاں ناصر آیا, خوشخبری لے کر آیا ہوگا. چھوٹ جائیں گے. نہیں خالجان, دروازے پہ تو کوئی بھی نہیں. کوئی بھی نہیں؟ اچھا, پھر کون دستک دے رہا تھا؟ میں سمجھی ناصر آیا ہے, خوشخبری لے کر آیا ہے. وہ چھوٹ جائیں گے. سکینہ, تمہارے خالو چھوٹ جائیں گے نا؟ بولتے کہ نہیں؟ چھوٹ جائیں گے نا؟ چھوٹ جائیں گے. ہاں خالہ جان, ضرور چھوٹ جائیں گے انشاءاللہ. سکینہ, ایوب شہید ہو گیا, اقبال چلا گیا. میں نے بہت صبر کیا مگر اب مجھے برداشت کی طاقت نہیں ہے, بالکل بھی نہیں. دیکھو دیکھو خوش آ
नहीं आओगे? कहाँ है तुम्हारे खालू? भागे क्यों नहीं? कहाँ है तुम्हारे खालू? बोलो ना। खालाजान, उन्हें सदाए मौत हो गई खालाजान। खालाजान, बोलती क्यों नहीं? बोलिए ना, आप बोलती क्यों नहीं? फिर क्या हुआ? फिर इन दोनों ने मेरा पीछा किया हुजूर। मैं अकेला था, इन दोनों ने मौका पाकर मुझे खूब मारा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ हुजूर के नासिर और अख्तर खतरनाक किस्म के बागी हैं और इनका ताल्लुक उसी गिरोह से हुजूर जिस आपको गोली चलाई। तुम क्या कहते हो इलाही बख्श? मेरा भी यही ख्याल है मेजर साहब, और इसीलिए मैं काली मिर्चा को अपने साथ ले आया हूँ। पासुम, पासुम क्या कर रहा है? पासुम को बुलाओ। मेजर साहब, ये क्या है? ये कुछ कागजात हैं। कैसे कागजात? इन्हें एक नजर देख लीजिए। ये वो अहकाम है मेजर साहब जो बहादुर शाह ने बगावत के दौरान जारी किए, और इन पर बादशाह के दस्तखत मौजूद हैं। ये उसकी बगावत का सबसे बड़ा सबूत है मेजर साहब। आपने कमाल कर दिया मिर्जा साहब। ये कागजात आपको कहां से मिले? ये तो बहादुर शाह के जराइम का जिंदा सबूत है। हुजूर, मिर्जा साहब ने इतना बड़ा काम किया है कि इन्हें तो मुंह मांगा इनाम मिलना चाहिए। बहादुर शाह, अब तुम पर मुकदमा चलेगा, बगावत का, गद्दारी का मुकदमा। हुजूर, गुलाम अब्बास बाहर शरफ बारियाबी के मुंतजर है। गुलाम अब्बास आया है? जी हुजूर। उसे अंदर ले आओ। जिल्लल्लाह, गुलाम बारियाबी की इजाजत चाहता है। आओ आओ गुलाम अब्बास, कहो क्या खबर लाए हो? जहां बख्शी हो तो गुलाम अर्श करे जहां पना। गुलाम अब्बास, तुम भी एक मजबूर से जो खुद अपनी किस्मत के फैसले का मुंतजिर है, जहां बख्शी की दरखास्त करते हो। जहां पना। गुलाम अब्बास, बहादुर शाह अब जहां पना नहीं है, तुम्हारा बादशाह नहीं है, सिर्फ फरंगियों का कैदी है, बेदस्तोपा कैदी। गुलाम अब्बास, हमें बताओ हमारे बारे में क्या सोचा जा रहा है? जहां पना फरंगियों ने हुजूर पर मुकदमा चलाने का फैसला किया है। मुकदमा? कैसा मुकदमा गुलाम अब्बास? वो इसे बगावत कहते हैं मलिक आलिया। बगावत? एक बादशाह की बगावत, और वो भी उन लोगों से जो खुद हमारी हुकूमत के गासिब हैं। तारीख ने इतनी मज़ाक़-खेज़ बात शायद पहले कभी न सुनी होगी। अफसोस, तकदीर के इस जिल्लत आमेज फैसले से कबल हम बख्त खां के साथ दिल्ली से बाहर क्यों न चले गए? इस वक्त कम से कम दिल्ली की आंखें अपने बादशाह की ये बेइज्जती तो न देख रही। उन बदबख्तों ने अचानक गोली चला दी। मैं इतने फासले पर था कि गोली की आवाज से मेरा घोड़ा फड़क गया। दूसरी गोली चली तो मैं उसकी जद में था, गोली हाथ में लगी, मगर जवाब में मेरे आदमियों ने भी अंधाधुन फायरिंग शुरू कर दी। अरे अरे क्या कर रहे हो? आप जरा तवक्कुफ फरमाएं, पहले मुझे पट्टी तो बांध लेने दें। तो बांधो ना। मालूम है जनरल, ये फायरिंग कहां से हुई? इस मुकाम से जिसके करीब ये रेसिडेंसी है, जहां हेवलाकर आउटराम चूहों की तरह छुपे हुए हैं। काश ये मेरे कब्जे में आ जाते। बदबख्त कौम, क्या लोग हैं वल्लाह। ताजिर बनकर आए, सलामियां उतारी और बादशाह बन बैठे, मगर हमने भी उनके जवाब में तलवारों की फसलें बोई हैं और सरों की खेतियां उगाई हैं।
देखना है किस फसल के क्या दाम लगते हैं। अहमदुल्ला शाह, जरा ठहर जाइए, पट्टी तो बनवा ले। मरहम पट्टी से क्या होगा? अरे मरहम पट्टी करना है तो उस दिल की करो जिसमें जख्मों के सिवा और कुछ नहीं। सिर्फ एक लम्हा शाह साहब, सिर्फ एक लम्हा। अच्छा भाई बांधो। बाबर को कैदी बना अकबर भी उनकी कैद में है। शाहजहां औरंगजेब भी उनकी कैद में है। देखो 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 बिल्कुल बेबस है। हमारा बादशाह जिंदाबाद, हमारा बादशाह जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। नहीं, ये तुमने क्या किया? ये तुमने क्या किया? वो देखो, वो देखो, आदिल शाह जफर को सजा देने के लिए ले जा रहे हैं, सजा देने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन तुम लोग रोते क्यों? क्यों रोते हो? मैं नहीं रो रहा, मैं नहीं रो रहा। तुम्हारे ये आंसू तुम्हारी बदनसीबी की स्याही को नहीं धो सकते, नहीं धो सकते, नहीं धो सकते।